बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन तक पढ़ा था एंथोसिरोस प्लांट में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड जो प्रोड्यूस होता है, वन ऑफ द एंथीरोजॉइड इट फ्यूज विद द egg cell in the archegonium, and then by the fusion of these two gametes zygote is formed, also called oospore, and here is the start of the sporophytic phase of the Anthoceros plant, which is represented by the sporogonium या sporophyte भी इसको हम कहते हैं। इसमें जो sporogonium प्रोड्यूस होता है, in this sporogonium the asexual reproductive units are produced, which are known as the spores. Now this is the diagram in which on the gametophyte plant body the long stalks are produced, and these long stalks जो हैं these are known as the sporophyte, which are produced after the fertilization by the development of the zygote or oospore. Now this is the diagram which is also showing the long sporophytes, और ये जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, दिस स्पोरोफाइट जो है वो लॉन्ग सिलेंडर जो है वो पार्ट होता है, और ये गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी जो है उससे ऊपर वर्टिकली जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ प्रोड्यूस होता है, एंड द लेंथ ऑफ दिस मे रेंज फ्रॉम 0.5 to 12 सेंटीमीटर इन हाइट. The structure of these sporophyte resembles to horns, so these are also known as, due to their resemblance with the horns, also known as the hornworts, जो कि गेमिटोफाइट जो थैलस है उसके ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं. Now the structure of the sporogonium is discussed. Sporophyte or sporogonium anthoceros, it's unique and it has some special features which are different from the other liverworts. Sporogonium, which is produced from the gametophyte, it does not depend on the gametophyte completely, and it is semi-independent. The sporogonium of the anthoceros consists of the following parts. The first lowermost part of the sporophyte or sporogonium is foot, जो बेस पर प्रेजेंट होता है, and it absorbs nutrition or food from the tissues of the gametophyte. It is bulbous, swollen part, and it consists of the parenchymatous tissues. Second part इसका जो है sporophyte का, sporogonium का, that is known as capsule. It is a main large part which is present on the upper side of the bulbous foot region. कैप्सूल जो है इसकी तकरीबन जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है वो 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग भी हो सकता है, और ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह जो है वो थिन, पतला और जो है वो स्ट्रेट होता है. और इसके कैप्सूल जो है इसके मेन जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं. The first part is the meristematic tissue, and this is present as at the base, जो कि फुट रीजन के ऊपर, और जो कैप्सूल रीजन है उसके जो है वो नीचे दरमियान में जो है प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द टिश्यू विच कंटेन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. जोन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के इसके सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से अपर साइड पर स्पोरोगोनियम जो है उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, और इसमें कंटिन्यूसली जो है वो स्पोरोसाइट्स या स्पोर मदर सेल जो हैं वो बनते रहते हैं. देन कैप्सूल की जो वॉल है, इसका आउटर वॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, which is thick and cutinized, and this is known as epidermis, and it has stomata for the exchange of gases. Then
Below this epidermis, the tissue is present, which consists of 4 to 8 layers of cells, and the cells of this region, they contain the chloroplasts, so they can synthesize their फूड मटेरियल मीन के फोटोसिंथेसिस जो है उसकी वजह से इसमें अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं. Here is the diagram of the complete mature जो है वो स्पोरोफाइट की डायग्राम है. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इसका दिखाया गया है. इसमें ये जो है वो नीचे बल्बस जो है वो लार्ज फुट रीजन है, और जो कि गेमिटोफाइट टिश्यू जो है उसके अंदर एम्बेडेड होता है. और इसके ऊपर और ये जो लॉन्ग कैप्सूल का जो पार्ट है, इसके नीचे इन बिटवीन दिस जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, और ये ऊपर की तरफ जो है वो नए सेल जो है वो ऐड करते होते रहते हैं, और इससे इसकी स्पोरोफाइट स्पोरोगोनियम जो है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहती है. इसमें जो कैप्सूल है इसकी ये देखें तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर और वॉल विच इज़ नोन एज एपिडर्मस, जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं. और इसके नीचे जो फ्यू लेयर्स हैं ये जो है इसकी वॉल फॉर्म करते हैं. एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और वॉल जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस जो है इनमें हो सकती है. और ये दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कैप्सूल रीजन. का जो कैप्सूल का रीजन है इसका ये क्रॉस सेक्शन है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मस कंटेनिंग स्टोमेटा हैविंग स्टोमेटा, और ये वॉल ऑफ द कैप्सूल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट हैं. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कैप्सूल का जो पार्ट है दैट इज़ द स्पोरोजिनस टिश्यू और आर्चिस्पोरियम. आर्चिस्पोरियम और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये कैप्सूल वॉल के इनर साइड पर प्रेजेंट होता है, और ये इन टर्न जो है वो सेंट्रल कोलुमेला पार्ट जो है उसको सराउंड करता है. और इस रीजन की जो थिकनेस है ये जो है वो तकरीबन 1 to 4 सेल्ड थिक रीजन है ये. और इसमें यंगर स्टेज जो है उसमें सेल जो होते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन मेचोरिटी पर लेटर ऑन जो है ये टिश्यू जो है स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये 2 टाइप्स के सेल्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है. नंबर 1 टाइप के जो हैं उनको स्पोरोसाइट्स या स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, और दूसरी टाइप के सेल जो हैं वो स्टेराइल सेल जिनको सूडो इलेटर्स जो है वो कहा जाता है. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रीजन है इसमें अगर आप देखें तो इसका जो बेसल पार्ट है इसमें यंग कंडीशन में ये सेल जो है इस रीजन में स्पोरोजिनस टिश्यू में आर्चिस्पोरियम जो है इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप के सेल होते हैं, लेकिन लेटर स्टेज पर जो है ये डिवाइड होके तो जो है 2 टाइप के सेल्स जो है वो बनाते हैं. एक लार्जर सेल जो स्पोर मदर सेल स्पोरोसाइट्स कहलाते हैं, और दूसरे जो हैं वो स्टेराइल सेल जो है वो उनको इलेटर्स कहते हैं. तो ये स्टार्ट में जो है रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. तो लार्जर साइज के जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये स्पोरोसाइट्स हैं. दीज स्पोरोसाइट्स ऑन रिडक्शन डिवीजन दे प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड सेल्स, जो कि स्टार्ट में जो है वो इकट्ठे एक ही जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट कंडीशन में होते हैं. तो टेट्राइड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं जिनके अंदर 4 हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. And the sterile cells, these are small in size, and 2 to 3 cells they join together and they form the small filament of 2 to 3 cells, और इनको इलेटर्स कहा जाता है. और ये जो इलेटर्स हैं इनको सूडो इलेटर्स भी कहते हैं, और इनकी वजह से जो है वो स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है. स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, इसके रिलीज़ में जो है ये हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें भी स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये हमें नज़र आ रहा है, और इसमें टेट्राइड्स ऑफ स्पोर मदर सेल जो हैं वो टेट्रा रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है वो टेट्राइड्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. 3 सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं और 1 सेल इनके बिहाइंड है. तो 4 हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में जो है ये कोलुमेला प्रेजेंट होता है जो 1 to 4 सेल इन थिकनेस होता है. ये सेंटर में आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो कि इनर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है. देन द
इनर मोस्ट पार्ट कोलुमेला जो है ये सेंट्रल रीजन अभी हमने पढ़ा देखा कि उसमें प्रेजेंट होता है और इसमें जो है वो 4 इलोंगेटेड रोज ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लेटर ऑन जो है ये 4 रोज डिवाइड होके तकरीबन जो है वो 16 रोज ऑफ सेल जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं और इसका फंक्शन जो है कंडक्शन ऑफ वाटर है एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम का अपर पार्ट जो है वो मैच्योर पहले हो जाता है और लोअर पार्ट जो है वो यंग रहता है, क्योंकि बेसल मेरिस्टेमेटिक रीजन से कंटिन्यूसली सेल जो हैं वो ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होते रहते हैं और एपेक्स पर टर्मिनल रीजन से जो है वो इसमें वॉल जो है कैप्सूल जो है वो रप्चर होता है और फिर ये रप्चरिंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव करती है और स्पोर्स जो है वो फिर इलेटर्स की हेल्प से जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और ईच स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके जो है वो न्यू एंथोसरस प्लांट जो है वो बना देता है। यहाँ डायग्राम में जो है वो हम देखते हैं इसका सेक्शन मेच्योर स्पोरोफाइट का गेमिटोफाइट जो है उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का ये बल्बस फुट रीजन एंड दिस इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड अपर टू दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और सेंट्रल वाले सेल जो है कोलुमेला और उसके इर्द गिर्द जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, आर्चिस्पोरियम जो कि स्पोरोजिनस सेल्स और इलेटर इनिशियल सेल जो है वो बनाता है। यहाँ पर जो है ये हमें वर्टिकल सेक्शन जो है उसमें उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वर्टिकल सेक्शन में दिखाया गया है और उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट इसका पार्ट दिखाया गया है एंड रप्चरिंग ऑफ द कैप्सूल फ्रॉम द अपर टू लोअर साइड, इसकी वॉल जो है रप्चर होती हुई दिखाई है और इसके अंदर से वॉल जो है इसकी एपिडर्मस जो है क्यूटिनाइज्ड और उसके इनर साइड पर जो थिक लेयर प्रेजेंट है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जब ये वॉल जो है इसकी रप्चर होती है तो सेंटर से ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं टेट्राइड्स की फॉर्म में और टेट्राइड्स के बाद फिर ये सेल जो है वो सेपरेट होके हैप्लॉइड्स स्पोर जो है वो रिलीज़ होते हैं और सेंटर में ये कोलुमेला जो है वो रह जाता है। तो इसी तरह से जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो इसकी जो वॉल है अभी हमने पढ़ा कि सेवरल सेल इन थिकनेस होती है और स्पोर जो है इसकी वॉल की जब रप्चरिंग होती है दो पार्ट्स में जो है दो वॉल्स में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों वॉल जो हैं वो बैक साइड की तरफ जो है कर्ल होना शुरू हो जाते हैं जिससे ट्विस्टेड फॉर्म में भी नज़र आते हैं बाज़ औक़ात और इनकी इसी जो है वो कर्लिंग की वजह से और स्ट्रक्चर जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स और जब रप्चर होते हैं तो उसके बाद ट्विस्टेड फॉर्म में जब ये नज़र आते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो हॉर्न से रिजेंबल करती है जिसकी वजह से इनको जो है वो हॉर्न वर्ड्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं हाउ दिस स्पोरोगोनियम डेवलप, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। अभी हमने स्ट्रक्चर इसकी पढ़ी। तो फर्टिलाइजेशन में जब वो जाइगोट डेवलप होता है तो ये जाइगोट या जिसको ओस्पोर भी कहते हैं, दिस ओस्पोर डिवाइड बाय 2 वर्टिकल एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन और इसके रिजल्ट में जो है वो 8 सेल प्रोड्यूस होते हैं और ये सेल जो हैं वो 2 टायर्स में अरेंज होते हैं, यानी 4 सेल्स अपर साइड पर और 4 सेल जो है वो लोअर टायर में प्रेजेंट होते हैं। न लोअर टायर के जो सेल्स हैं ये डिवाइड होके मैसिव बल्बस फुट रीजन बनाते हैं और फुट जो है वो गेमिटोफाइट टिश्यू में जो है वो पेनिट्रेट करता है और इसके सेल जो है वो लोअर सरफेस पर जो है उससे राइजॉइड भी जो है वो रोजॉइड लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो डेवलप करते हैं। अपर टायर के जो 4 सेल्स हैं ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं और इनसे जो है वो 2 to 3 टायर्स ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि हर टायर में 4 सेल जो है प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद इन टायर्स के अंदर जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है और पेरिक्लाइनल डिवीजन के रिजल्ट में 2 लेयर्स सेल की प्रोड्यूस होती हैं, एक आउटर लेयर और दूसरी इनर लेयर। आउटर लेयर के सेल जो हैं दीज आर नोन एज द एम्फिथीशियम एंड द इनर cells of the inner layer जो है these are known as the endothecium. Now the cells of the endothecium or the inner layer these divide to form the columella और columella जो है ये स्क्वायर फॉर्म में अरेंज होता है। ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम देखें इसको तो एम्फिथीशियम के जो सेल्स हैं ये जो है वो डिवाइड होकर जो है वो 2 लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। आउटर लेयर जो है उसको जैकेट इनिशियल सेल्स कहते हैं और इनर लेयर जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू या आर्चिस्पोरियम फॉर्म करती है। यहाँ जो है वो हम डायग्राम देखते हैं आगे।
जिसमें जो है वो डेवलपमेंट जो है वो दिखाई गई है स्पोरोफाइट की। इस जाइगोट, और ये जाइगोट जो है इसमें जो है वो दो वर्टिकल डिवीजन हुई, एक हमें यहाँ फ्रंट पे नज़र आ रही है और दूसरे जो है वो इस साइड पे लॉन्गिट्यूडनली होगी, टू वर्टिकल डिवीजन्स और ये एक ट्रांसफर्स डिवीजन। और फिर इसमें जो है वो इस ट्रांसफर्स डिवीजन के बाद जो दो टायर्स हैं, इनमें दो लोअर टायर के जो सेल्स हैं ये बल्बस फुट रीजन फॉर्म करते हैं, और अपर टायर जो है उसमें जो है वो और ट्रांसफर्स डिवीजन होती हैं, और जिससे 1, 2 और 3 टायर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होती हैं, और हर टायर में 4 सेल प्रेजेंट है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप पेरिक्लाइनल डिवीजन अकर्स। दिस इज द पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि अलॉन्ग द एंगल जो है वो डिवीजन होती है ऑल सेल में, और इसके रिजल्ट में दो लेयर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होती हैं, आउटर लेयर ऑफ सेल एंड इनर लेयर ऑफ सेल्स। आउटर लेयर जो है उसको एम्फिथीशियम कहेंगे, और ये एम्फिथीशियम जो है डिवाइड होती है और दो जो है वो लेयर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस करती है। आउटर लेयर जो है वो जैकेट इनिशियल सेल, और इनर लेयर जो है वो आर्चिस्पोरियम टिश्यू जो है वो लेयर प्रोड्यूस करती है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू। जबकि एंडोथीशियम के जो सेल्स हैं ये जो है वो डिवाइड होकर तो इनिशियल स्टेजेस पर 4 रोज ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 4 रोज ऑफ सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कॉलुमेला बनाता है। अब इसके बाद ये जो आउटर जैकेट इनिशियल्स हैं, नेक्स्ट जो है वो स्टेज पर हम देखते हैं। इसको एक दफ़ा देख लें, फिर इसके बाद डायग्राम देखते हैं कि इसमें जो जैकेट इनिशियल सेल्स हैं, अभी जो हमने पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि वॉल जो है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मस होती है, और इनर फ्यू सेल्स जो हैं वो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप होता है, वॉल ऑफ द कैप्सूल फॉर्म करते हैं। तो जैकेट इनिशियल सेल जो हैं ये जो है वो स्पोरोगोनियम की वॉल जो है फॉर्म करते हैं, जिसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मस होती है, और इसमें क्यूटिनाइजेशन हो जाती है आउटर लेयर में, और कुछ एपिडर्मल सेल जो हैं वर्टिकली डिवाइड होकर तो गार्ड सेल बना देते हैं, और ये जो है वो स्मॉल ओपनिंग इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये स्टोमेटा फॉर्म करते हैं। और पेरेन्काइमा सेल जो इस लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं, दीज डेवलप क्लोरोप्लास्ट, और ये इनसे फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है वो डेवलप होता है। अब जैकेट इनिशियल सेल्स के नीचे जो स्पोरोजिनस लेयर प्रेजेंट है या आर्चिस्पोरियम, तो इसकी जो है वो सिंगल टू 4 लेयर्स जो है वो थिकनेस जो है वॉल लेयर जो है वो प्रोड्यूस होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और लार्जर सेल जो हैं दीज आर नोन एज स्पोरोसाइट्स और स्पोर मदर सेल्स, और ये सेल जो है इनमें रिडक्शन डिवीजन होती है, एंड दे प्रोड्यूस द 4 स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर जो है इनिशली जो है वो टेट्रैट में अरेंज होते हैं, और फिर बाद में सेपरेट जो है वो हो जाते हैं। फिर इस तरह से जो स्मॉलर सेल्स हैं वो इलोंगेट होते हैं थोड़े से, और एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके तो सिंपल या ब्रांच जो है वो इलेटर्स फॉर्म करते हैं। अब स्पोरोगोनियम के जो ऑल सेल्स हैं ये सेम टाइम पर जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं, यानी कैप्सूल के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके जो या बाकी भी टिश्यू है ऑल पार्ट्स का, तो उसमें सारे सेल जो हैं वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं, बल्कि बेस पर जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पर जो है वो यंग होते हैं, और ऊपर वाली साइड पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेच्योरिटी फेज़ जो है वो बढ़ती जाती है। मेरिस्टेमेटिक रीजन से न्यू सेल जो है वो कंटिन्यूसली अपर साइड की तरफ ऐड होते जाते हैं, और ये जो है वो डिफरेंट रीजन में फिर डिफ्रेंशिएट होके मेच्योर होते जाते हैं। जिस तरह हमने पार्ट्स पढ़े कि सेंट्रल मोस्ट कॉलमेला, फिर उसके इर्द गिर्द स्पोरोजिनस लेयर प्रेजेंट है, और उस स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके इर्द गिर्द वॉल ऑफ द कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट है, और इस तरह से स्पोरोफाइट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो एक्टिव रहता है। बेस पर कैप्सूल की बेस पर जो है वो ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, इवन अपर साइड पर जो है वो इसमें डेहिसेंट स्टार्ट हो जाती है, रिलीज ऑफ स्पोर जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसकी वॉल रप्चर होने के बाद, और स्पोर जो है वो लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं, जबकि बेसल पार्ट जो है उसमें अभी टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, न्यू सेल कंटिन्यूसली जो है प्रोड्यूस होते जाते हैं। यहाँ पर दोबारा से जो है वो
स्पोर जो है उसकी डेवलपमेंट, स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है कि जिसमें अपर टायर के सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल, और लोअर मोस्ट टायर जो है वो उसके सेल जो है बल्बस फुट रीजन प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बीच में जो है वो सेंट्रल टायर जो है वो टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रोड्यूस करता है। फिर इसमें अपर टायर कैप्सूल वाला जो रीजन है, इसमें जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है तो उससे दो लेयर्स एम्फिथीशियम आउटर और इनर एंडोथीशियम प्रोड्यूस होती है। एम्फिथीशियम जो है वो फिर स्पोरोजिनियस टिश्यू और जो है वो वॉल प्रोड्यूस करती है जैकेट इनिशियल, और एंडोथीशियम जो है वो कॉलुमेला प्रोड्यूस करता है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो मेच्योर स्पोरोफाइट की डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी जो है दीज आर शोन कि अपर मोस्ट पार्ट जो है उसमें वॉल रप्चर होगी और स्पोर जो है वो रिलीज हो रहे हैं। उससे नीचे जो टेट्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है और इलेटर्स जो हैं वो बन गए हैं, और उससे नीचे जो है अभी टेट्राइड जो है वो बनने से पहले जो है वो स्पोर मदर सेल या स्पोरोसाइट्स जो है प्रेजेंट हैं, जिनमें रिडक्शन डिवीजन अभी नहीं हुई है, और इलेटर्स और उससे पहले जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज जो है उसमें हमने पढ़ा था फेज में, जब फर्टिलाइजेशन हुई थी, कि गमीटोफाइट टिश्यू जो कि एम्ब्रियो के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है ये डिवाइड करता है और टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑन द सराउंडिंग द एम्ब्रियो, और इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव शीट प्रोड्यूस करता है लेयर, जिसको इन्वोल्यूकर कहते हैं। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और उसके डिफरेंट रीजन से जो है वो क्रॉस सेक्शन लेकर डिफरेंट मेच्योरिटी की स्टेजेस या फेजेस जो है वो कैप्सूल के अंदर दिखाई गई हैं। इस डायग्राम में मेच्योर कैप्सूल जो है उसमें उसकी अपर साइड से एपेक्स से वॉल रप्चर होके स्पोर जो है वो रिलीज होते हुए दिखाए गए हैं, और सेंटर में कॉलुमेला जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ पर अगेन जो है वो स्पोरोफाइट मेच्योर स्पोरोफाइट की डायग्राम है, जिसमें वॉल रप्चर होके तो स्पोर्स भी रिलीज हो चुके हैं, और इसमें जो है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो स्पोरोफाइट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। द हैप्लॉइड स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। अब यहाँ पर जब गेमिटो स्पोरोफाइट में डिप्लॉयड फेज तक, स्पोर मदर सेल तक जो है वो डिप्लॉयड फेज है, स्पोरोफाइट फेज है, लेकिन जैसे ही उसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाती है और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ से फिर दोबारा से गेमिटोफाइट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ईच हैप्लॉइड स्पोर जो है मेच्योर स्पोर जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो टू लेड वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर वन को एक्सोस्पोरियम या एक्साइन कहा जाता है, और इनर जो है वो उसको इंटाइन कहा जाता है। और स्पोर जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्वेल होता है, तो इसकी एक्साइन जो है वो ट्राई रेडिएट रिज जहाँ पर प्रेजेंट होती है वहाँ से रप्चर होता है, और इनर कॉन्टेंट जो है वो एक जर्म ट्यूब की फॉर्म में जो है वो जर्म ट्यूब के अंदर जो है एंटर हो जाते हैं, और ये जर्म ट्यूब जो है वो ग्रो करती है और उसके अंदर कॉन्टेंट्स एंटर हो जाते हैं। और इस तरह से इसके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, और इस जर्म ट्यूब जो है उसके अपर एंड पर, एपिकल एंड जो है उसके ऊपर जो है वो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है, सेप्टल वॉल इज प्रोड्यूस, फिर जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, 2 से 4, और इस तरह से जो है वो फिर वर्टिकल डिवीजन में होती है और 8 सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इनमें 8 सेल जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आउटर 4 सेल जो आउट ऑफ विच जो है वो ग्रोइंग पॉइंट के तौर पर एक्ट करते हैं, और उसमें जो है वो डिवीजन्स होती हैं, और ये जो है मैस ऑफ टिश्यू जो है, मैस ऑफ सेल जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। एनी वन सेल ऑफ दिस जो है इट इलोंगेट्स एंड फॉर्म द राइजोइड, और ये मैस ऑफ सेल जो है इसमें फ्यू सेल जो ग्रोइंग पॉइंट के तौर पर एक्ट करते हैं, वहाँ से जो है वो उसके दोनों साइड से सेल जो है वो टर्मिनल जो साइड्स हैं एंड्स पर, यहाँ पर सेल में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो है लोब स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है। और जो है इस लोब स्ट्रक्चर में जहाँ ग्रोइंग पॉइंट जो प्रेजेंट होता है, ये यंग थैलस जो है इसमें लोब स्ट्रक्चर डेवलप होती है, तो इस ग्रोइंग पॉइंट के करीब ही यहाँ पर जो है मिसलेजिनस स्लिट जो है यहाँ पर डेवलप होती है, मीन के पोर जो है वो डेवलप हो जाता है, और इसके अंदर मिसलेजिनस सब्सटेंस जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाता है। एंड द नोस्टॉक
cell enter into through this pore इनसाइड द कैविटी, और इसमें इसके अंदर जो है वो रहना शुरू कर देते हैं और इस तरह से हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके जो है वो गेमीटोफाइट बॉडी जो है वो दोबारा से बना देता है। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि इसमें समटाइम्स सर्टन कंडीशंस में ऐसा होता है कि स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो हैं वो गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, यानी वो गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी बना देते हैं। रिडक्शन डिवीजन हुए बगैर, स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हुए बगैर ये सेल जो हैं इसके स्पोरोफाइट के डायरेक्टली जो है वो गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और ये गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड होती है, और इस फिनोमेना प्रोसेस को जो है वो एपोस्पोरी कहा जाता है। मीन कि एपोस्पोरी भी जो है वो इसमें पाई जाती है। एंथोसरस प्लांट इट शोज द रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है कि थैलस जो है वो गेमीटोफाइट है, और इसमें सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होता है जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ करके तो जाइगोट और ओस्पोर फॉर्म करते हैं, और ओस्पोर जो है वो फिर उसमें जो है वो स्पोर मदर सेल जो वो स्पोर जो है उससे फिर स्पोरोफाइट स्पोरोगोनियम डेवलप होता है। स्पोरोगोनियम के अंदर जो है वो स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और ये स्पोर मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीजन होती है तो डिप्लॉयड फेज जो है वो एंड हो जाती है, और उसके बाद हैप्लॉयड स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो दोबारा से हैप्लॉयड गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी बना देते हैं। यहाँ पर जो है वो हम डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ जो है वो एंथोसरस का देखते हैं, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी जो है वो देख सकते हैं हम डायग्रामेटिकली। दिस द गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी, और इसके ऊपर एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रीडियल चैम्बर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं विच प्रोड्यूसेस द एंथीरोजॉइड्स हैप्लॉइड, और आर्चिगोनिया जो है एम्बेडेड इन द थैलस गेमीटोफाइट थैलस जो है प्रोड्यूस होते हैं, एंड इनसाइड ईच आर्चिगोनियम वन एग इज प्रोड्यूस्ड, and on fertilization the zygote on the fusion of the male and female gamete the zygote is produced, और यहाँ पर जो है फिर हैप्लॉइड फेज जो है वो उसका गेमीटोफाइट फेज जो है उसका एंड हो जाता है, और उसके बाद जो है वो zygote स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो इट इज स्टार्टेड। नाउ दिस zygote on development produces the स्पोरोफाइट, जिसका स्ट्रक्चर हमने और डेवलपमेंट अभी पढ़ी कि बेसल बल्बस फूट रीजन प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन स्मॉल प्रेजेंट होता है, देन अपर टू दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है ऊपर साइड पर कैप्सूल फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, एंड इन दिस कैप्सूल स्पोर मदर सेल और स्पोरोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर डिप्लॉयड, और ये स्पोर मदर सेल जो हैं फिर इनमें रिडक्शन डिवीजन होती है, और स्पोर टेट्राइड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिनमें 4 जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो व्हेन दीज आर प्रोड्यूस तो स्पोरोफाइट की वॉल रप्चर होने के बाद रिलीज होने पर जो है वो जर्मिनेट करते हैं, और यंग थैलस प्रोड्यूस करने के बाद जो है ये मेच्योर गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है वो गेमीटोफाइट फेज जो है वो अल्टरनेट करती है विद द स्पोरोफाइट फेज। नेक्स्ट डायग्राम जो है उसमें हम देखते हैं ग्राफिक लाइफ साइकिल कि एंथोसरस प्लांट जो है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है डिफरेंट मेथड से, और फिर एंथोसरस प्लांट जो है वो इसमें मेल और फीमेल organs Enteridium and Archegonium produces the gametes, haploid gametes, and upon fertilization oospore is produced which produces the embryo sporogonium, फिर उसमें स्पोरोगोनियम में स्पोर मदर सेल या स्पोरोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, अपॉन रिडक्शन डिवीजन दी स्पोर मदर सेल दे प्रोड्यूस द स्पोर्स, एंड दी स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन अगेन प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी ऑफ द एंथोसिरस प्लांट्स, और इस तरह से गेमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो उससे अल्टरनेट करती है। तो आज के लेक्चर में हमने एंथोसरस जो है वो उसमें स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो पढ़ी है।